So everyone good now. Today in this class we will start with chapters called sets. So first of all, we are going to start with what is the meaning of sets first. See, students coming from ICC CBSE background, they haven't studied this chapter before because, but yes, for if you come from ICC background till class 10, you have studied in, any of the classes, I think this chapter sets. So you all know about what is sets, but CBSE students के बारे में इसके बारे में कोई knowledge नहीं. But I'm not going to start this chapter in such a way that you know or not. I'm going to begin it with the big, एकदम basic से हम start करेंगे कि ये sets होता क्या है पहले, तो basic level से. So let me begin with the definition of this chapter sets first. So first we begin with definition. What is sets? See, in very simple language, we can say that so what is sets? In a very simple language, we can say a collection of objects, a collection of well-defined objects is called a set. Or we can say grouping of objects having similar characteristics is called a set. Or we can say grouping of objects based on a particular criteria. A criteria we will fix kar denge, and based on that criteria we are going to classify. We are going to classify objects. So grouping or classification of objects is called a set. So what is a set? Let's define it first. So we can say that a well-defined collection of objects I must say distinct objects, okay? Not just objects, but distinct objects is called a set. Okay? So a well-defined collection of distinct objects. याद रखना, अगर बहुत सारे objects, there are three objects which are similar, we are not going to repeat that similar objects. We will write that object once only. So that's why you make sure that a well-defined, because what is the meaning of well-defined? Means we are going to classify objects on the basis of a particular definition, on the basis of a particular criteria, on the basis of a particular property. So this collection, that is classification of distinct objects, is called a set, we can say. Okay. Now, जैसे कि मान लो suppose मैंने इस particular group जो भी अभी present है यहाँ पे, उनका एक मैंने ग्रुप फॉर्म किया है और उस ग्रुप का मैंने नाम दे दिया है अप्लाइड मैथ्स लेवल, राइट? तो एग्जैक्टली सेम वे हम जब हम सेट्स का बात करते हैं और जब हम क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होता है जो हम क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि हम ग्रुप करते हैं तो ग्रुप किसको करेंगे? हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करेंगे, हम कुछ मेंबर्स को उसके अंदर रखेंगे. जैसे यू ऑल आर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप अप्लाइड मैथमेटिक्स 11. You all are the objects of this group named Applied Mathematics 11. And you all are members of that group. So what we are finding कि इस group का एक नाम है and तुम लोग उस group के members हो. So we are finding that there are certain rules, there are certain things we have to keep in mind while we write a set, while we group a set, and what are those things. So let us start with how to represent a set. But before representation, let me explain you what are the things like क्या-क्या चीजों को फॉलो करना होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं. क्या हम लोग ऐसे किसी तरह से भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को लिख देंगे? नहीं. When we classify or when we group objects, what are the things we have to keep in mind? Point number one, every set has got name. हर एक सेट का एक नाम होगा और name of a set is always denoted with capital letter. Please note down. हर एक सेट का एक नाम होगा and name of a set is always denoted with capital letter, anything from A to Z. मतलब हम लोग एक सेट का नाम देंगे और कभी भी नाम को स्मॉल लेटर से लिख के नहीं डिनोट किया जाता है. सेट का नाम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिख करके डिनोट करते हैं. ओके. नंबर 2, जब हम सेट का नाम हम लोगों ने दे दिया तो मेंबर्स को कैसे लिखेंगे? हम लोग मेंबर्स को लिखने का भी तरीका होता है. व्हाट इज दैट? वी यूज दिस ब्रेसेस सिंबल. याद रखना, ये ब्रेसेस सिंबल के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं. कैसे? सेपरेटेड बाय कॉमा. हम लोग एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो, ठीक है, एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स ऑफ दैट सेट और दैट ग्रुप बोलो,
को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी सेपरेट यूजिंग कॉमा। जैसे हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद बीच में कॉमा देते हैं। और ध्यान रखो कि ये ब्रेसेस के अलावा हम कोई और ब्रैकेट को यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज दीस टू ब्रैकेट्स बिकॉज़ देयर इज अ आई मीन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। मतलब हम लोग ये ब्रैकेट, ब्रेसेस ब्रैकेट के अलावा हम कोई और ब्रैकेट को यूज नहीं कर सकते सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखने के लिए। अगर आपको पता चल गया कि सेट का एक नाम होता है और ये ब्रैकेट को यूज करके हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सो लेट अस सी वन एग्जांपल। लाइक आई गिवन अ नेम, आई मीन मैंने एक नाम दिया सेट का जिसका नाम है ए। मैंने ये ब्रैकेट यूज किया सेट के अंदर जो एलिमेंट्स को लिखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। वी कैन नॉट राइट एनी वे वी फील लाइक। और मान लो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एक का नाम 1 है, दूसरा का नाम 2 है, तीसरा का नाम 3। सो हियर इससे हम लोग को पता चल रहा है तीसरा पॉइंट कि हर एक सेट का एक कार्डिनल नंबर होता है। पहले मैंने क्या बताया, नाम, नेम ऑफ अ सेट। फिर क्या बताया कि देखो ये ब्रैकेट, ये वाले ब्रेसेस सिंबल को यूज करके हम लोग एलिमेंट्स सेट के अंदर, सॉरी सेट का जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो नाम पता चल गया कि ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट व्हिच यू मस्ट नो इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? Cardinal number means the number of elements present in, the number of distinct elements present in, total number of distinct elements present in set is called cardinal number. Like for example, in this particular set A, what is the cardinal number of the set A? We can say that the cardinal number of the set A is 3 because in this set A, you've got total how many number of elements? You've got total 3 elements. कितने elements है total? 3 elements है, इसलिए इसका cardinal number क्या है बताओ तो 3 है। इसका cardinal number क्या है 3। And how to write out? This is the way how we write out. n का मतलब क्या होता है? Number of elements। ये ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, याद रखना। देखो एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके को कोई और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे ये ब्रैकेट की जगह किसी के मन में हम ऐसे ये ब्रैकेट दे दे या ये ब्रैकेट दे दे, आई कैन नॉट यूज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? n और ब्रैकेट के अंदर a। सो इसका मतलब हो गया सेट का नाम जिसका हम कार्डिनल नंबर बोलना चाह रहे हैं, जिसके अंदर जिसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हैं, और ये ब्रैकेट को यूज करके n देंगे हम, स्मॉल n नॉट कैपिटल n। स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A। तो बताओ कि सेट A के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट्स हैं? कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सेट के अंदर हम मान लो 1 को 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो और 2 को 2 बार, तो बताओ तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट? 5. यस, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट? Cardinal number of the set means total number of distinct elements. Distinct elements. इसमें कितने distinct elements हैं बताओ? So that's why. What is the cardinal number of the set? It is just 2. इसका cardinal number कितना है? 3 है। तो याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल नंबर में हम याद रखना कोई भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो रेपिटेशन को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। हम लोग उसके अंदर कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो हम काउंट करते हैं। इसके अंदर कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है? 1 एक बार है, आई मीन 1 3 बार है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना है? 2 ही है ना, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मेक श्योर दैट कभी भी सेट के अंदर मतलब एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये चीज लिखा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट कभी भी फ्रीक्वेंसी को नहीं डिनोट करता है। जैसे तुम लोग देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 1 3 बार रिपीट करता है तो फ्रीक्वेंसी में 1 का क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। 2 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 का फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बट सेट वो नहीं काम करता है। सेट क्या डिनोट करता है? सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट 5 बार क्यों ना रिपीट करे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, राइट। हम लोग उसकी कितने रिपीटेशन है उसको हम लोग वहां पर नहीं लिखेंगे। जैसे 1 को 3 बार नहीं लिखेंगे, 1 3 बार है ठीक है, लेकिन हम उसको एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। I hope it is clear to everyone. Now I will start how to represent elements in a set. There are 2 methods. Copy down this and then I'll explain you what are the two methods of representing elements in the set. Copy down first. Now, representation of sets. Okay, there are 2 methods. Okay, just note down. So basically, there are 2 methods
the first method, not first or second, we can say one method is called tabular form or roster form. एक मेथड को बोलते हैं हम लोग tabular form or we can say roster form. And the second method is called set builder form. ठीक है? Now, what is tabular form or roster form? Can anyone answer me? ये होता क्या है? As you have studied in, I mean, your school completed. So, can you tell me? कि ये tabular form और set builder form मतलब क्या होता है? What is this? And what is this set builder form? Anyone? रोस्टर में वो एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखा जाता है और सेट बिल्डर में उसका डिस्क्रिप्शन होता है कॉमन. Very good. Very good. So what is tabular form or roster form? Note down. Here we write down these elements actually. Here the elements are listed and nothing else. जैसे मान लो A is a set and here we list elements separating with comma. और जो set builder form में हम लोग क्या करते हैं? Set builder form में हम लोग एलिमेंट्स को लीस्ट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म मतलब सेंटेंशियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस सेट को. जैसे मान लो यहाँ पे देखा जाए तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है बता सकते हो? ये क्या है बताओ तो? 1 2 3 क्या है? दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स. कैन आई से 1 2 3 आर ऑल नेचुरल नंबर्स? कैन आई से? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो, ए इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स such that this element belongs to a natural number and all natural numbers less than equal to 3. Everyone note down. I repeat once again. देखो मैंने दोनों में डिफरेंस क्या है? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं? हम लोग बस क्या करते हैं उसको सेंटेंस में मतलब सेंटेंशियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं. और अगर देखा जाए तो टैबुलर फॉर्म और वी कैन से रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट करके लिखते हैं, मतलब लिखते हैं, लिख करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. और कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमा से. ठीक है? और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? सेट ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स को हम x से डिनोट कर रहे हैं. तुम इसको a से भी डिनोट कर सकते हो, b से भी डिनोट कर सकते हो, मैं x से डिनोट कर रहा हूं. और ये एलिमेंट क्या है? इट इज सच दैट, ये क्या सिंबल है बताओ तो? सच दैट ये एलिमेंट एक नेचुरल नंबर है. x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, ये इसका नाम क्या होता है? बिलोंग्स टू. मतलब ये एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर. कैपिटल एन क्या है बताओ तो? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स. क्या सारा नेचुरल नंबर्स? नहीं. ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3. सो ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3 में क्या क्या आएगा? इट विल बी 1, 2, 3. Alright everyone, so ये तुम्हारा tabular form और roster form और दूसरा method है set builder form and nothing else. Okay, now with this I'm just keeping today's class is just an introduction class where just मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग start कर लिए. आज मैं उतना नहीं कराऊंगा so that there are many students who will be joining from the next class. तो मैं next day से start करूँगा. Okay, so you can just copy down this part and we will start from next day. Thank you everyone.